السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ ای فارمولا ریسنگ مقدمے میں اے سی بی عدالت نے 6.5 گھنٹے کے ٹی آر سے پوچھ تاچھ کی۔ 30 سے زیادہ سوالات کیے گئے۔ دوبارہ طلب کرنے پر حاضر ہونے کی ہدایت۔ تلنگانہ کے لیے اپنی جان دے دیں گے لیکن ریونت ریڈی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تحقیقات سے پہلے کے ٹی آر کی میڈیا سے بات چیت، پارٹی قائدین کو نظر بند کر دیا گیا۔ عوام کو بہتر انداز میں ریونیو خدمات فراہم کی جائیں گی۔ بھو بھارتی قانون کو گورنر کی منظوری۔ اراضی مسائل کا مستقل حل کرنے کے لیے قانون تیار کیا گیا۔ پی سرینیواس ریڈی کا بیان۔ اور گڈی ملکا پور حدود میں مزدور کی مشتبہ موت، افراد خاندان نے گلا دبا کر مارنے کے شبہ کا کیا اظہار۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل۔ 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5,000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، AC ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ فارمولا ای ریسنگ معاملے میں محکمہ انسداد رشوت ستانی ACB نے جمعرات کو KTR سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ صبح تقریباً 10:30 بجے KTR ACB کے دفتر بنجارہ ہلز پہنچے تھے اور 5 بجے تک ان سے پوچھ تاچھ ہوئی۔
पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि वो एसीबी के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं और जो भी सवालात किए जाएंगे वो उसके जवाब देंगे। केटीआर ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। केटीआर ने कहा कि पूछताछ के दौरान बार बार एक ही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि 4-5 सवालात वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से तैयार किए गए थे। केटीआर ने कहा कि जब रकम कंपनी के अकाउंट्स में जमा कर दी गई है तो बदउनवानी का सवाल कहां पैदा होता है। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस और केटीआर के दरमियान नोकझोंक देखी गई। बाद में केटीआर तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। केटीआर के हमराह पार्टी लीडर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इससे कबल ई फार्मूला रेसिंग मामले में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव के खिलाफ एसीबी की पूछताछ की गई। सुबह पूछताछ का आगाज हुआ। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद फिर से पूछताछ हुई। इत्तला है कि एसीबी की तरफ से केटीआर से ई फार्मूला रेसिंग को लेकर 30 से ज्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। आज केटीआर अपनी क़यामगाह से एसीबी के दफ्तर बंजारा हिल्स पहुंचे। इससे कबल उनकी क़यामगाह पर पार्टी कारकुनों का हजूम देखा गया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी एसीबी ने केटीआर को तलब किया था, लेकिन वो अपने वकील के साथ पहुंचे थे, लेकिन वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और केटीआर हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। हाई कोर्ट ने वकील को साथ ले जाने की इजाज़त तो दी, लेकिन ये कहा कि वकील पूछताछ के दौरान केटीआर के साथ नहीं बैठ सकेंगे। उन्हें लाइब्रेरी के कमरे में बिठाया जाएगा जहां से वो केटीआर को नजर आ सकेंगे। ई फार्मूला रेसिंग मामले में फंड्स की मुबैना मुंतकिली को लेकर केटीआर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ईडी ने भी केटीआर को नोटिस जारी की है। వారు వాళ్ళ కొన్ని రోజులు ఏదో జైల్లో పెట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందాలనే ఒక పిచ్చి కార్యక్రమం రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు. అది ఆయన కర్మ, నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన స్థాయి, ఆయన అవగాహన, ఆయనకున్న ఒక పరిమితమైన జ్ఞానంతో ఆయన ఇందులో ఏదో జరిగింది కుంభకోణం అనుకుంటున్నాడు. పచ్చ కామెర్ల వాడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనబడ్డట్టు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి దొంగకు అన్నిట్లో కూడా దొంగతనం జరుగుతుంది, అన్నిట్లో కూడా పైసలు తింటారనే ఒక దిక్కుమాలిన ఆలోచన ఉండొచ్చు. కానీ నేను ఒక్క పైసా అవినీతి చేయలేదు. నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, మీరు రేపు రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు రండి, లేదా మీరు మమ్మల్ని మీ జూబ్లీ హిల్స్ ప్యాలెస్కి రమ్మంటే వస్తా, ఇద్దరం కూర్చుందాం. నువ్వు లై డిటెక్టర్ పెట్టు, ఓపెన్ లైవ్ కెమెరాలు పెట్టుంది, నేను మాట్లాడతా, నువ్వు మాట్లాడు. ఎవడు దొంగనో ఎవడు దొరనో రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తారు, దేశ ప్రజలు చూస్తారు. एसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले केटी रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काबीनी वजीर के ओहदे पर रहने के दौरान उन्होंने उनके बेटे की कंपनी को कोई मुआहदा अलॉट नहीं किया था। उन्होंने कोई महंगी गाड़ियां नहीं खरीदी। रेवंत रेड्डी और उनके वज़रा के जहनों में बदउनवानियां भरी हुई हैं। मैं कभी एमएलए को खरीदते हुए नहीं पकड़ा गया। वो तेलंगाना के एक संजीदा सपूत हैं और उनके पास आधा भी बदउनवानी का पैसा नहीं है। कांग्रेस के कुछ लीडर्स उनकी नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होगी। हम हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर रेवंत रेड्डी यह समझते हैं कि मुकदमों के ज़रिए हमारे कैडर को और क़यादत को कमज़ोर कर सकते हैं और करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस ने जो 420 वादे किए हैं, हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। केसीआर के बेटे की हैसियत से वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तेलंगाना के लिए अपनी जान देंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी जैसे लोगों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हमने हमेशा तेलंगाना के ब्रांड को बुलंद रखने के लिए काम किया है। इस दौरान बीआरएस पार्टी के कई लीडर्स के मकानात के पास पुलिस को तैनात देखा गया। हरीश राव की क़यामगाह पर भी पुलिस देखी गई। यह तल्ला है कि बीआरएस पार्टी के लीडर्स को घरों पर नजरबंद किया गया है। इस दौरान बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केटीआर ने एसीबी की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजिलाना समाअत के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फौरी समाअत से इनकार किया है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को केटीआर की दरख्वास्त की समाअत करेगी। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी केटीआर की तरफ से उनके खिलाफ एसीबी के केस को खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। फार्मूला ई रेसिंग मामले में सीनियर आईएएस ओहदेदार अरविंद कुमार से जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ हुई है।
वाज़ेह रहे कि ई फार्मूला रेसिंग मामले में अरविंद कुमार मुलजिम नंबर 2 बताए गए हैं। बरतानिया की एक कंपनी को फंड्स की मुंतकली के सिलसिले में अरविंद कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और इसी सिलसिले में इनसे पूछताछ जारी है। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने भूभारती कानून 2024 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके इस कानून पर अमलावरी शुरू की जाएगी। गवर्नर की मंजूरशुदा कॉपी को सेक्रेटेरिएट के महकमे रेवेन्यू के चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल और वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी के हवाले की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम को मजीद बेहतर अंदाज में रेवेन्यू खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को जामे अंदाज में रेवेन्यू खिदमात फराहम करने के मकसद से भूभारती कानून लाया गया है। आराजी मसाइल को मुस्तकिल हल करने के लिए यह कानून तैयार किया गया है। इस कानून की तैयारी में जिसने भी ताउन किया है उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बैरूनी दौरा करने की एसीबी अदालत ने मंजूरी दे दी है। 13 जनवरी तक 23 जनवरी तक बैरूनी दौरा करने की एसीबी अदालत ने इजाज़त दे दी है। ओट बराए नोट केस में रेवंत रेड्डी के पासपोर्ट को अदालत के हवाले कर दिया था। वज़ीर आला ने उनके बैरूनी दौरे के लिए इजाज़त तलब की कि वो ब्रिस्बेन, डाउस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड का दौरा करेंगे। अदालत को इसकी तल्ला दी गई। इसके लिए 6 माह तक उन्हें पासपोर्ट देने की अदालत से दरख्वास्त की, जिस पर एसीबी अदालत ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया। अदालत ने 6 जुलाई तक उन पासपोर्ट को अदालत में वापस करने की हिदायत दी है। डॉक्टर योगिता राणा जो पोस्टिंग के इंतजार में थे को सेक्रेटरी महकमे तालीम मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर एन श्रीधर जायद जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अब वो इन जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएंगे। सेक्रेटरी मादनियात और तबकात अर्ज INC के सुरेंद्र मोहन का तबादला करते हुए उन्हें कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी SCDN श्रीधर को सुरेंद्र मोहन की जगह मादनियात, तबकात अर्ज INC महकमों की जायद जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि KTR ने कवायद की खिलाफ वर्जी की, हुकूमत के खजाने का गलत इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही गवर्नर की मंजूरी के बाद तहकीकात का आगाज किया है। रकम कहाँ गई है इसकी ACB तहकीकात चल रही हैं। KTR तहकीकात का सामना करने तैयार हैं, लेकिन इसमें रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? KTR का ज़ाती मफाद क्या है, इसकी तहकीकात चल रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ KTR गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। KCR ने क्या उन्हें यही तहजीब सिखाई है? उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ को छुपाने के लिए इश्तियाल दिला रहे हैं और वो मुमकिन नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली M सत्यम ने कहा कि KTR को किसी भी अदालत में राहत नहीं मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि KTR ने गलती की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KTR तहकीकात के लिए पूरा ताउन करें। M सत्यम ने कहा कि RBI के कवायद को नज़रअंदाज करके 55 करोड़ रुपए किस तरह मुंतकिल किए। ग्रीन को कंपनी के जरिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड हासिल किए हैं, ये क्विड प्रो को नुकसान है। उन्होंने कहा कि सिलसिला में KTR के ताउन से आराजियात की बेकायदगियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। KTR ने जो गलती की है उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमतन गोश मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में रुकन असम्बली ने जुमेरात को अपने कैंप ऑफिस पर वाटर वर्क्स के CGM ऑपरेशंस, GM ऑपरेशंस, DGM ऑपरेशंस और हल्का मलकपेट के मैनेजर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। बड़े प्रोजेक्ट के 450 ता 900 mm के लाइंस को नालों से मरबूत करने के सिलसिले में तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया और इस सिलसिले में मनसूबाबंदी करने पर जोर दिया। सीवरेज की मौसर बहाव को यकीनी बनाने के सिलसिले में मनसूबाबंदी की हिदायत दी गई। कहीं भी सीवरेज के ओवरफ्लो को रोकने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ज़र-ए-इल्तिवा कामों पर भी तबादला ख्याल करते हुए जल्द इसकी तकमील पर जोर दिया गया। हल्के मलकपेट में ज़ख़ायर आब की तामीर के सिलसिले में तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई। इस इजलास में हल्के मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने MD वाटर वर्क्स से भी फ़ोन पर बात करते हुए नए कामों की मंजूरी की दरख्वास्त की।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अहमदनगर डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अवैसीपुरा धोबी घाट के अलावा दीगर इलाके जात में करीब 9 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई गई है, जिसकी लागत 24 करोड़ रुपए बताई गई है, क्योंकि कदीम सीवरेज से पानी पलट रहा था। अलावाजी उन्होंने बताया कि सैदनवी कॉलोनी के पास 86 लाख रुपए की लागत से तरक्की दी जा रही है। पार्क में बच्चों के लिए खेलकूद की जुमला सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और ओहदेदारों के हमराह कोह मौला अली का मुआयना किया और वहां मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स शरीफ के इंतजामात का जायजा लिया। हज़रत अली की विलादत बासआदत के मौके पर कोह मौला अली को कसी तादाद में यहाँ ज़ायरीन पहुँचते हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अक़लियतों के लिए हर मुमकिना सहूलतों की फराहमी चाहते हैं। उन्होंने मौला अली के दोनों पहाड़ों के दरमियान रोपवे की तजवीज़ का खैर मकदम किया और कहा कि रैंप का काम तकमील के मराहिल में है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की टीम दीगर महकमे जात के साथ तालमेल करते हुए इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाएगी। मौला अली में आने का आज मुझे पहली बार मौका मिला है। मुकामी अवाम, जमात और हमारे बोर्ड मेंबर लोगों की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी हो रही थी कि क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर उर्स मुबारक है, तो उसका इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से पहली बार मैं खुद यहाँ पर आज विज़िट किया हूँ। इंतज़ामात का जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रैंप का काम हम देखे हैं और साफ़ सफाई का काम हम देखे हैं और हम ये वक्फ बोर्ड की जानिब से और मुकामी मुतवल्ली और आफंदी साहब की जानिब से हम लोग तमाम इस चीज़ की हम रास्त निगरानी कर रहे हैं कि 4 दिन जो अहम होते हैं, लाखों लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, अपने अक़ीदत के साथ आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो उनको हर तरीके से उनको सहूलतें, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। साबिक़ फुटबॉल के खिलाड़ियों के एक वफ्द ने मिर्ज़ा मोहम्मद बेग की क़यादत में कायद मुक़र्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। इस मौके पर मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ने अकबरुद्दीन ओवैसी को फुटबॉल के खिलाड़ियों के मसाइल के बारे में वाकिफ़ करवाया, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मसाइल की यकसुई पर गौर करने का तयक़ुन दिया। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों से मुलाकात करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने इस सिलसिले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशंस राजेंद्र नगर डी श्री राम मोहन के अलावा उनके महकमे के डीई, एडीई और एई से मुलाकात की और तरक्याती कामों की तकमील के अलावा दूसरे उमूर पर बात की। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद, साबिक़ रुकन बलदिया हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। जामियतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का हफ्ता 11 जनवरी को ईदगाह मीर आलम में आगाज़ होगा, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 1 लाख ख़वातीन शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली तमाम ख़वातीन और तालिबात का इन 2 दिनों में मुफ्त क़याम ताम रहेगा। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, समाजी तकाज़ों और मुस्लिम ख़वातीन के रोल पर मौज़ूआती मुबाहिस होंगे। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमीर जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के दुआया कलमात से होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, साबिक़ नायब वज़ीर आला वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, सदर नशीन मालियाती कॉरपोरेशन तारिक अंसारी के अलावा उलमाए कराम, अहले इल्म व दानिश शख्सियात के खिताबात होंगे। इस कॉन्फ्रेंस की खुसूसियात में मौज़ूआती मुबाहिस शामिल हैं: औरत का मुकाम, मुश्तरका ख़ानदान और असर हाजिर, मुस्लिम माशरा व फजूल खर्ची, मेहमानों की ज़ियाफ़त, इस्लामी नुक़्ते नज़र, हिजाब, शौहर बीवी के हुकूक़, अमलियात व मुस्लिम ख़वातीन, सब्र व क़नाअत पसंदी जैसे मौज़ूआत पर मक़ाले पेश किए जाएंगे और मुबाहिस होंगे। मर्द उलमाए कराम पस पर्दा खिताब करेंगे। खातून प्रोफेसर, मुफ्तियाँ व
अहले इल्म मौज़ूआती मुबाहिस करेंगे। जामियतुल मोमिनात के बानी व नाजिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली, सदर इस्तक़बालिया सैयद शाह नूरुल हक़ क़ादरी, मुंतज़िम उमूमी डॉक्टर साबिर पाशा ने मीडिया के ज़रिए शहर और अज़ला की ख़वातीन व तालिबात से इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील की। ट्रांसपोर्ट क़याम व ताम मुफ्त रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सरकारी महकमे जात की जानिब से बरक़ी, पानी, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इतवार 12 जनवरी की शाम इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 28वें यौम तासीस के मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस गच्चीबौली में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर मुमताज़ अली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने सदारत की। इस तकरीब में गुज़िश्ता 27 साल से इस यूनिवर्सिटी के सफ़र के अहाता किया गया। उर्दू में रिवायती तालीम के अलावा प्रोफेशनल तालीम अत्ता के हुनरमंदी की तालीम यूनिवर्सिटी फराहम कर रही है। कुल हिंद सनती नुमाइश में जेल का स्टॉल मरकज़ तवज्जुह बना हुआ है, जहां कैदियों की तैयार करदा अशिया की नुमाइश और फरोख्त का इंतज़ाम है। डायरेक्टर जनरल महाबिस सुमैया मिश्रा ने इस स्टॉल का इफ्तिताह किया और नुमाइश आने वालों से कहा कि वो इस स्टॉल को ज़रूर देखें, जहां मेयारी अशिया किफ़ायती दामों में दस्तयाब होंगे। कैदियों को हुनर से जोड़ने उनके लिए कई एक सनती प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिससे कैदियों को मुआशी सहारा भी मिल रहा है। गुज़िश्ता साल नुमाइश में इस स्टॉल को पहला इनाम हासिल हुआ था और इसने 21 लाख रुपए का कारोबार किया था। इस साल इससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही है। आज हम यहाँ 84th इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश 2025 प्रिजन स्टॉल ओपनिंग के लिए आए हूँ। लास्ट ईयर भी यही नुमाइश में हमारा स्टॉल ओपन किए थे और लास्ट टाइम हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिजन स्टॉल फर्स्ट प्राइज़ का अवार्ड भी मिला था उसको। लास्ट टाइम हमको मोर देन ऑलमोस्ट 21 lakhs का प्रोडक्ट्स सेल भी हुआ था। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं वो प्रिजनर्स, हमारे जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो तैयार करते हैं एंड इसका जो वेजेस है वो उनको जाता है। ये प्रोडक्ट्स अभी हम बेसिकली ये नुमाइश में एग्जीबिशन के लिए लगाए हैं और सेल भी कर रहे हैं एंड इसमें हमको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता है एंड अच्छा सेल होता है। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट थ्रू यू कि सारे आके हमारे माई नेशन आउटलेट करके है जहां हम प्रिजन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और ये प्रिजन प्रोडक्ट्स आप द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिलता है, बिकॉज हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। दिस इज़ बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं उनको स्किल्स सिखाने के लिए है, जिसके द्वारा वो रिलीज़ होने के बाद बाहर जाके वो अपने लाइफ ज़िंदगी लीड कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का एक स्टेप है ये। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनकरेज प्रिजन प्रोडक्ट्स एंड बाय देम एंड वंस अगेन मेक आवर स्टॉल द बेस्ट इन दिस प्लेस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वेंकट द्वार दर्शन टिकट मरकज के करीब भगदड़ में 6 यात्रियों की मौत हो गई है। सुबह से ही हजारों यात्री तिरुपति के मुख्तलिफ टिकट मराकज पर वेंकट द्वार के दर्शन के टिकट के लिए कतारों में खड़े थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यात्रियों को बैरागी पड़ीटा पार्क में कतार में खड़े होने की इजाज़त दी गई। भगदड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई, जिसमें 4 यात्री जख्मी हो गए। वेंकट द्वार के दर्शन को 10 दिन के लिए खोल दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों लोग टोकन के लिए जमा हो रहे हैं। सूरत हाल को बिगड़ते देखकर तिरुपति पुलिस ने चार्ज संभाल कर हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4000 लोग दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज तिरुपति मंदिर भगदड़ वाक़े के मुकाम का मुआयना किया और फिर हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने टोकन के हुसूल के दौरान हुई भगदड़ और अमवात पर नाराजगी जाहिर की। उनका यह भी कहना था कि हजारों लोगों के हजूम के बावजूद अचानक गेट को खोल देना मुनासिब नहीं था। वाज़ेह है कि इस वाक़े में 7 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा
जख्मी बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दर्शन टोकन के हुसूल के दौरान भगदड़ वाक़े में हलाक होने वालों के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए आंध्रा के वजीर रेवेन्यू ए सत्य प्रसाद ने कहा कि जानों का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन हम महलूकीन के विरसे के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तिरुपति में भगदड़ वाक़या अफसोसनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हों। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में टीटीडी टिकट काउंटर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि भगदड़ में जख्मी होने वालों का बेहतर इलाज किया जाए। अगर आप लोग तिब्बी खिदमात फराहम नहीं कर सकते तो हैदराबाद रवाना करें, हम उनके साथ रहकर इलाज करवाएंगे। रेडियो, स्टेज और टेलीविज़न की मशहूर व मारूफ शख्सियत असलम फरशोरी का इंतकाल हो गया है। मरहूम एक मुमताज़ ब्रॉडकास्टर और नाज़िम मुशायरा थे। असलम फरशोरी हैदराबाद की क़दीम अदबी तंजीमों जिंदा दिलाने हैदराबाद और फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी से भी वाबस्ता रहे। दारुस्सलाम में होने वाले नातिया मुशायरों की भी निज़ामत का उन्हें शर्फ हासिल रहा। इत्तलात के मुताबिक असलम फरशोरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो ICU में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा सन सिटी में वाक़े मस्जिद फ़ातिमा में शाम 7:30 बजे अदा की गई और तदफीन दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन में अमल में आई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने 13 और 14 तारीख को संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र पतंगबाजी से मुतालिक रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में सड़कों पर पतंगबाजी पर सख्ती के साथ पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे और इसकी इजाज़त नहीं रहेगी। सरपरस्तों से अपील की गई है कि पतंगबाजी के दौरान अपने बच्चों पर नज़र रखें। खास तौर पर छत पर पतंगबाजी के दौरान बरखी के तारों से बच्चों को दूर रखा जाए। अवामी मकामात पर DJ के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 30 दिनों तक अवामी मकामात पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। 11 जनवरी की सुबह 6 बजे से 10 फरवरी 2025 तक इस पर अमल रहेगा। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेशे से मजदूर अरुण कुमार 6 जनवरी को काम के लिए निकला था। जब उसकी बीवी ने फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो काम पर है। शौहर के देर गए तक घर न लौटने पर उसने फिर फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो शराब पी रहा है और कहाँ है उसका खुद उसे पता नहीं। लेकिन दूसरे दिन मुकामी अफराद ने इत्तला दी कि अरुण कुमार मदहोश पड़ा हुआ है। जब घर वाले मुकामी वाक़या पहुँचे तो उसकी गर्दन पर निशान थे और उन्होंने शुबा जाहिर किया कि अरुण का रस्सी से गला दबाकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, एसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। ई फार्मूला रेसिंग मुकदमे में एसीबी अदालत ने 6.5 घंटे केटीआर से पूछताछ की। 30 से ज्यादा सवालात किए गए। दोबारा तलब करने पर हाजिर होने की हिदायत। तेलंगाना के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तहकीकात से पहले केटीआर की मीडिया से बातचीत, पार्टी कायदीन को नजरबंद कर दिया गया। अवाम को बेहतर अंदाज में रेवेन्यू खिदमात फराहम की जाएंगी। भू भारती कानून को गवर्नर की मंजूरी। आराजी मसाइल का मुस्तकिल हल करने के लिए कानून तैयार किया गया। पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। और गुडी मलकापुर हुदूद में मजदूर की मुश्तबा मौत, अफराद खानदान ने गला दबाकर मारने के शुबे का किया इजहार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।